Hello everyone. In this video we are going to start a new unit which is 2.3 from paper 1. As far as this unit is concerned, we have put everything that is required for any question if comes from this particular topic. If something is left, that particular thing you can check from your notes, but majoritarily everything has been covered. The name of this unit is marriage. Now marriage is something which is sort of near universal phenomenon in India, but that is not something which is a reality when it comes to its institution. So we are going to deal with marriage. Okay, then what is the function of marriage, what are the laws of marriage, what are the transactions which happens during the marriage, what are the types of marriage, okay, and how mates are acquired. So these are the things that we are going to discuss on this particular unit 2.3. Then we are going to talk about two things. First is this universality of marriage, and second, we are also in the last we are going to discuss the institution of live-in relationships. Okay, so UPSC have asked question on this particular thing as well as on this, so we are going to discuss on both these things in the last, but before that we are going to cover the statics. So in order to write a good answer or answer which will fetch you good marks, we should know some details. Now what are those details? That details include the name of scholars, some books, definitions, etc. Apart from that, if we are writing anything in socio-cultural anthropology, as I have told you, if we are writing paper 1, then anything from socio-cultural anthropology should be reserved for the event of a last thing measure. Okay, it's not like we are going to write directly, like we'll jump on to the first question that we see if it is from socio-economic or socio-cultural anthropology. We are going to see physical anthropology, linguistic and archaeology, and if still we are not able to find something good, then we will go to the socio-cultural anthropology. That is something as a caution you remember. Now I'll be switching to Hindi and English, and चलो इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले इस यूनिट को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कुछ स्कॉलर्स के नाम जो इस यूनिट में आएंगे. ठीक है, वेस्टर्न मार्क एक नाम है जो हमेशा इस यूनिट में रिपीट होगा. उसके बाद मर्डॉक है, ये भी नेम रिपीट होगा. कैथलीन गो, ये नाम भी रिपीट होगा. सेलिगमैन एंड विलियम स्टेफन. अगर आपने एक वेब सीरीज़ होती है वैम्पायर डायरीज, अगर ये देखी होंगी तो आपको ये दो नाम अच्छे से याद रहेंगे, कैथलीन एंड विलियम. दीज आर दी कैथलीन एंड स्टीफन. तो ये जो नाम है ये उससे आप याद रख सकते हैं. वेस्टर्न मार्क एंड मर्डॉक, आप एम याद रखिए मैरिज से और उसको उल्टा कर दीजिए डब्ल्यू, तो ये बन गया मर्डॉक. ओके, एंड देन सेलिगमैन, बस इसको याद ही रख लीजिए. ठीक है, देखिए मैरिज अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, जैसे E.B. टायलर ने कल्चर की डेफिनेशन दी कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज, आर्ट, बिलीफ, कस्टम, मॉरल प्रैक्टिसेस एंड ऑल द हैबिट्स एंड कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. वैसी कोई मैरिज की डेफिनेशन किसी ने दी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म से इन डेफिनेशंस के बारे में भी वो हम डिस्कस करते हैं. जैसे यूनिवर्सलिटी वाला पॉइंट उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इतना समझिए कि मैरिज, जैसे कि जिस भी सोसाइटी में जाते हैं, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन मेजॉरिटीली, और उसके जैसा कोई इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट तो होता है, बट जो डेफिनेशंस यहाँ पे स्कॉलर्स ने दी है उसमें बहुत सा जो था वो ग्रे एरिया था. अब सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते कि मर्डॉक. ठीक है, स्कॉलर मर्डॉक जो है वो कहते हैं कि मैरिज इज ए यूनिवर्सल फेनोमेना. सबसे पहले चलो ठीक है मान लेते हैं, तो फिर अगर यूनिवर्सल है, हम क्रिटिसिज्म भी यही कर लेते हैं, यूनिवर्सलिटी वाला जो पॉइंट है यही करते हैं. अगर मैरिज यूनिवर्सल है तो बहुत से लोग होते हैं जो अनमैरिड रहते हैं. फॉर एग्जांपल नागा साधुस, राइट, नागा साधुस और ब्रह्मचारीज फॉर दैट मैटर, तो ये तो शादी नहीं करते, तो फिर यूनिवर्सल कैसे हो गया. फिर सेकंड इन्होंने कहा कि रेसिडेंशियल
और कोहैबिटेशन, मतलब इनका एक घर है और उस घर में ये जो है साथ में रहते हैं, ठीक है, कि साथ में रहते हैं, कोहैबिट। बट दिस इज ऑल्सो नॉट द थिंग। फॉर एग्जाम्पल जो टाली टाइंग सेरेमनी होती है नायर्स में, उसमें ऐसे नहीं होता कि पति पत्नी साथ में रहते हैं। और बहुत बार होता है कि जैसे कि पत्नी को डेजर्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया और पति कहीं और रह रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द थिंग। बहुत बार ऐसे होता है कि पति पत्नी साथ में भी नहीं रह रहे, सो दैट इज़ ऑल्सो वन क्रिटिसिज्म। फिर कहते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। नाउ इंडिया में मेजोरिटीली ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वुमेन जो है वो 4 वॉल में कन्फाइंड होती है। जो मेजोरिटी होता है काम वो मेल करते हैं, हार्ड वर्क, एंड जो सारा उसके अलावा जो भी काम बच जाता है वो सारा काम फीमेल करती है। बट इकोनॉमिक को अगर हम देखते हैं तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर सोसाइटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे सोसाइटी, ठीक है। और इन्होंने मर्डॉक ने कहा है कि फैमिली अपना मैरिज को आप न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन तो किसी ने दी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल डेफिनेशन में बहुत सारे क्लॉजेस होंगे। हम कोशिश करेंगे लास्ट में एक डेफिनेशन लिखने की, बट नो डेफिनेशन इज कंप्लीट, ठीक है। फिर वेस्टर्न मार्क आते हैं। वेस्टर्न मार्क अपनी डेफिनेशन देते हैं कि मेल एंड फीमेल में यूनियन है, जहाँ पे मेल फीमेल साथ में रहते हैं और म्यूचुअल सेक्सुअल राइट्स है। नाउ हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लिव टुगेदर नॉट नेसेसरी, यूनियन बिटवीन मेन एंड वुमेन कहते हैं। तो मेन एंड वुमेन क्यों, वुमेन एंड ये क्यों नहीं, मतलब लेस्बियन एंड गे मैरिजेस क्यों नहीं, वाई नॉट द लेस्बियन मैरिज, वाई नॉट द गे मैरिज, तो होमोसेक्सुअल मैरिजेस यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूडेड है। फिर कहते हैं कि म्यूचुअल सेक्सुअल राइट है। तो अभी दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ द थिंग कि म्यूचुअल सेक्सुअल राइट है, ऐसा चीज़ कोई है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मैरिज इज़ नॉट अ सेक्स प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि जैसे कि मैरिटल रेप का इशू अभी बहुत है जो चल रहा है फिलहाल की कंडीशन में, जो भी होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट देंगे। तो अभी तक उन्होंने कोई क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि मैरिटल रेप का क्या सीन है, तो तब तक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। अब सेलिगमन का क्या देखते हैं, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक में डाला यूनियन बिटवीन मेल एंड वुमेन। तो फिर होमोसेक्सुअल का क्या, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग होंगे। दिस कैन बी एक्सेप्टेड, दिस कांट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एक मैन ए है और उसने जो है एक विमेन से जो चलो मैन से ही शादी कर ली, ठीक है, ये होमोसेक्सुअल कपल है, तो इन्होंने एक जो बच्चा है अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, दिस इज द चाइल्ड दैट दे हैव अडॉप्टेड। तो ये लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग होगा या नहीं होगा, इस पे भी कोई चीज़ अभी तक क्लैरिटी नहीं है। और ये दोनों कौन सा बच्चा है अडॉप्ट कर पाएंगे, मेल या फीमेल, ठीक है, फीमेल कर पाएंगे या मेल। दिस इज द थिंग कि ये मेल ही कर सकते, फीमेल नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते। लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग का जो केस है यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद कैथलीन, जैसे मैंने बताया था वैम्पायर डायरी आपको याद रहेगा तो आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। तो कैथरीन ने कहा है कि विमेन का जो द चाइल्ड दैट अ विमेन विल हैव विल बी कंसिडर्ड एज अ लेजिटिमेट, यू नो, दैट चाइल्ड विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ अ लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग, ठीक है, उसको पूरा बर्थ राइट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल नायर्स में उन्होंने जो है केस स्टडी डाली, आपको यही मेंशन करना है कि नायर केस स्टडी, ठीक है। उसके बाद विलियम स्टीफन, तो इसमें इन्होंने कहा कि लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट एंड परमानेंस। अब डाइवोर्स होने लग गए तो परमानेंस वाला इशू भी कट हो गया। लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन कहते हैं, हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मैरिटल रेप वाली चीज़ अभी तक मेंशन की है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली वैलिड, मतलब एम्बिग्विटी है। पब्लिक प्रोनाउंसमेंट, ज़रूरी नहीं है पब्लिक प्रोनाउंसमेंट, आप वैसे भी इतने सारे सिटीज़ में रहते हैं, तो जैसे एक ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में शादी हो गई तो इसके नीचे तो किसी को पता ही नहीं है, सो पब्लिक प्रोनाउंसमेंट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग। तो क्रिटिसिज्म ये है कि सबसे पहले इट इज़ मेजोरिटीली मोनोगैमस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो फोकस है वो मोनोगैमस है। इन्होंने होमोसेक्सुअल, जैसे फॉर एग्जांपल अजानदे ट्राइब में होमोसेक्सुअल मैरिजेस होती है तो उसको तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। घोस्ट मैरिज होती है इंडिया में, इसको मैच न्यूर में, ठीक है, इसको इन्होंने जो है मिस कर दिया। उसके बाद पीपल ट्री के साथ इंडिया में मैरिजेस होती है, उसको भी इग्नोर कर दिया।
जैसे हमने देखा ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन तो शायद होगा सोसाइटीज़ में, बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल ताली टाइंग सेरेमनी होती है, ठीक है, उसमें पति पत्नी साथ में नहीं रहते। उसके बाद नो परमानेंसी, परमानेंसी इज़ नॉट नेसेसरी। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी ज़रूरी नहीं है। और चाइल्ड केयर जो है, फॉर एग्जांपल किबुट्स, इसराइल में किबुट्स आपको पता होगा, ठीक है, इसराइल में। तो इसराइल में अगर ये मेल और फीमेल है, इनका जो बच्चा होगा, ये जो बच्चा होगा इट विल बी सेंड टू क्यूबिट्स, ठीक है, किबुत में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे वो बाकी बच्चों के साथ जो है बड़ा होगा। सो यहाँ पे तो बच्चा है ही नहीं साथ में, तो अगर बच्चा नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह रहे, तो ये कोई न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं बनेगी। तो न्यूक्लियर फैमिली नहीं बनी, तो सबसे पहले जो इन्होंने कहा था, मर्डॉक ने जो डेफिनेशन सबसे पहले हमने लिखी है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर फैमिली बनती है। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली बनने के लिए हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, ये 3 कंटेंट होना चाहिए, मतलब 2 जनरेशन मिनिमम होना चाहिए। ये तो है नहीं। सो दिस इज समथिंग, यूनिवर्सलिटी का बारे में भी हमने जो है क्लियर कट मेंशन कर दिया। अब लॉज ऑफ मैरिजेस देखते हैं, ठीक है। शादी करनी है तो उसके कुछ नियम है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपोगैमी, हाइपरगैमी और इंसेस्ट टैबू। बेसिक बता देता हूँ। एंडोगैमी मतलब मान लीजिए ये आपका एक ग्रुप है, ठीक है, ये आपका 50 दोस्तों का एक ग्रुप है, आपको अपना लाइफ पार्टनर इसी ग्रुप में ढूंढना है, ठीक है, इन द सेम ग्रुप, तो ये एंडोगैमी हो गई। अब मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, ठीक है, ये 50 लोगों का है। अब आप ए से है और आपको कहा जा रहा है कि आप ए से कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढेंगे, आपका कोई पार्टनर नहीं होगा, आप बी से ढूंढेंगे, तो ये हो गया एक्सोगैमस, ठीक है। ए में ही ढूंढना है तो एंडोगैमस, बी में ढूंढना है, ए में बिल्कुल नहीं ढूंढना है मतलब एक्सोगैमस। हाइपोगैमी और हाइपरगैमी को हम जैसे टॉपिक आता है वैसे समझते हैं। बेसिकली इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए एक लेडी है, एक फीमेल है, तो वो अगर शादी करती है तो वो अपना कास्ट जो उसका अटैच्ड होगा वो छोड़ देगी, मतलब इट विल बी लेफ्ट। अगर मान लीजिए एक ब्राह्मण लड़की है, इफ शी मैरी अ ब्राह्मण बॉय, उसकी कास्ट मेंटेन रहेगी। बट इफ द ब्राह्मण गर्ल मैरीज टू अ क्षत्रिय बॉय, देन शील बिकम क्षत्रिय, उसकी कास्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चीज़, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोगैमी से। एंडोगैमी में कौन कौन सा एरिया जिसको कवर करते हैं? कास्ट एंडोगैमी होगी कि आप अपने सिर्फ कास्ट में शादी करेंगे। रिलीजन एंडोगैमी कि चलिए ठीक है आप कास्ट के बाहर कर रहे हो कोई इशू नहीं, बट आप रिलीजन के अंदर करिए, एंडोगैमी है। या आप ट्राइब के अंदर ही करिए तो एंडोगैमी। इसमें एग्जाम्पल आप मेंशन कर दीजिए, खासी, टोडा, कादर, गोंड, हिंदू कास्ट सिस्टम, ठीक है, जैसे आप बेसिकली ये जानते हैं। तो आपके पास ये एग्जाम्पल आ गए, ठीक है, ये केस स्टडी भी आ गई और आपने बेसिक टेनेट्स डाल दिए, ठीक है। और आप इसको ऐसे करिए, बेसिक प्रीमाइस, तो प्रीमाइस में आप ये चीज़ मेंशन कर देंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, आप भी बना सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं सेंटर में कुछ लिखने की, बट यू कैन मेक अ ट्री डायग्राम। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को बचाना है तो एंडोगैमी, मतलब अभी बहुत से कम्युनिटीज़ होती है, जैसे तेलीज़ ऑयल बनाती है, कुमार्स पॉट बनाते हैं, नाईज बाल काटते हैं, तो ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। वो ऑक्यूपेशन बाहर नहीं जाना चाहिए कम्युनिटी का, दैट इज़ वन ऑफ द गोल। सेकंड, कंट्रोल ओवर रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कि तेलीज है तो उनके पास ऑयल बनाने के लिए वो एक क्रशर होता है, ठीक है, ऐसा क्रशर है तो उनके पास क्रशर है, ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर ऑक्यूपेशनल सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सी कम्युनिटीज़ होती है जो जनरेशन में अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो पास ऑन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज़ें आ जाती हैं एंडोगैमी में, क्रॉस कज़न मैरिज और पैरेलल कज़न मैरिज। पैरेलल कज़न मैरिज बहुत ही रेयर है, ठीक है, वेरी रेयर। बट आप कुर्द्स, आप यूपीएससी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कुर्द्स का है, वरना आप सर्च करके मुझे बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद क्रॉस कज़न मैरिज आप जानते हैं इस्लामिक सोसाइटीज़ में बहुत कॉमन होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पैक्ट्स। इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे? तो देखिए, सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे ऊपर हमने देखा, और अलायंस, ये थर्ड पॉइंट न्यू है, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव पॉइंट हो गया कि अगर एंडोगैमी में क्या होता है ना कि जो रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब व्हाट आई एम सेइंग इट इज़, आप 9.6 या बेसिकली यूनिट 9 में हम जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी करेंगे तो उसमें
ये टॉपिक आएगा कि इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्सेग्यूनस एंड अफिनल मेटिंग या इनब्रीडिंग, ठीक है, इनब्रीडिंग, ये सेपरेट क्वेश्चन आता है इस पर, तो हम उस पर प्रॉपरली उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझना चाहिए कि रिसेसिव ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, अलायंस बिल्ड होती है, टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल होता है, और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। सेकंड इसका लॉ है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि आप ए से हैं और आपको कहा गया है कि आप ए में से किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते, आप बी में जो है लड़की से शादी करेंगे, या सी से करेंगे, डी से करेंगे, ई से करेंगे, जो भी, बट ए में नहीं करेंगे, दैट इज़ इट, एक्सोगैमी। तो सबसे पहले होता है कि, चलो इसको मैं ऐसे सिंपल करता हूँ, फैमिली एक्सोगैमी। एक होता है क्रॉस कज़न मैरिज, ठीक है, और पैरेलल कज़न मैरिज, ठीक है। तो क्रॉस कज़न मैरिज और पैरेलल कज़न मैरिज के एग्जांपल्स हमने जस्ट ऊपर लिखे हैं, याद करो। तो आप अपने फैमिली में तो शादी नहीं करेंगे, ठीक है, तो फैमिली एक्सोगैमी हो गई, ठीक है, दोनों साइड की। फिर आप लीनिएज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक लीनिएज होती है, ये दादा दादी है मान लीजिए, फिर ये फैमिली, इनके कुछ 10-15 बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर ये बच्चे, इनके बच्चे, ऐसे एक आए, तो ये जो आपकी एक लीनिएज एक बन जाएगी, इसमें आप शादी नहीं करेंगे। आप अपने क्लैन में शादी नहीं करेंगे, आप अपने विलेज में नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडिया में खाप पंचायत बैठती है, कुछ एक मूवी वगैरह भी बहुत सी बनी है कि एक गांव के जो भी लड़का लड़की होंगे वो भाई बहन होंगे, तो वो अपने गांव में शादी नहीं करेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सोगैमी, गांव के बाहर करेंगे। हमारे क्लैन में शादी नहीं हो सकती, बाहर वाले क्लैन में। अभी अगर मान लीजिए ये ट्राइब है, ट्राइब जो है ना वो 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड होती है, उसको हम फैट्री कहते हैं, आई थिंक फैट्री, सॉरी मोइटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आता है फ्रैटरी, फिर आता है क्लैन, फिर आता है लीनिएज। तो आप लीनिएज से बाहर करेंगे, क्लैन के अंदर करेंगे, तो क्लैन एंडोगैमी हो गया और लीनिएज एक्सोगैमी हो गया। आप क्लैन से बाहर करेंगे पर फैट्री के अंदर करेंगे, तो क्लैन एक्सोगैमी होगी और फैट्री एंडोगैमी हो गई। फिर आप मोइटी में आ गए, आप मोइटी के अंदर शादी करेंगे पर फ्रैट्री के बाहर करेंगे, तो एक मोइटी में बहुत सारी फैक्ट्रीज होगी, है ना, और जैसे एक फैक्ट्री में बहुत सारे फिर क्लैन्स होंगे, तो अगर आप अपने क्लैन में नहीं करेंगे, साइड वाले क्लैन में कर सकते हैं, ठीक है। आप तो ये समझ गया आपने, ओके। फिर मोइटी हो गया, और फिर गोत्रा। जैसे हिंदू सोसाइटी में गोत्रा का अर्थ आपको पता होगा कि आप अपने बेसिकली अपने गोत्र में शादी नहीं करते, ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र वाले ब्रदर सिस्टर सॉर्ट ऑफ रिलेशन शेयर करते हैं। ईबी टाइलर ने एक्सोगैमी को ऐसे बताया कि पुराना जो टाइम था, जैसे पैलियोलिथिक टाइम था, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, तो एक्सचेंज करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, तो पीस प्रमोट करने के लिए उन्होंने विमेन का एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया, जिसको फिर एक्सोगैमी हम कहते हैं। इसके बाद हर्बर्ट रिजले ने एक वियर्ड सी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि नीड फॉर वैरायटी, मतलब ज़िंदगी में इनको अलगपन चाहिए था, वो कहते हैं ना कुछ नया चाहिए था। सो दिस इज़ समथिंग हर्बर्ट रिजले हैज सेड, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। हर्बर्ट रिजले ने कहा था इनको ज़िंदगी में नयापना कुछ चाहिए, तो मिल गया। फिर वेस्टर मार्क, जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहला नाम वेस्टर मार्क कहते हैं कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब जैसे आप अपना फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपका ब्रदर है या सिस्टर है, तो यू माइट लव हिम, ओके, और हर एक अमाउंट में, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़ते हो, तो वो ये नहीं होता जितना आप जिस भी इंसान के साथ, इवन इसको ऐसे समझिए कि आपकी शादी हो जाती है, तो फॉर 1 or 2 year यू आर हैविंग वेरी 1 or 2 year ज़्यादा हो गया, 1 year और से 6-7 month यू आर इन वेरी डीप सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फैमिलियरिटी जो बढ़ जाती है, सो इट ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ठीक है। दिस इज़ अ पॉइंट, प्लीज़ टेक इट ऑन अ लाइटर टोन। इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, एक्सोगैमी का, तो एक्सोगैमी के कारण ये इनब्रीडिंग जो होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर मान लीजिए 100-200 साल तक ये चल रहा है तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जैसे दैट इज़ नॉट आई एम सेइंग, दैट इज़ व्हाट द टेक्स्ट बुक आर सेइंग, बट मेनली शॉर्ट टर्म में लॉसेस होते हैं। हाइब्रिड जो एक नेचर होता है ना सोसाइटी का, वो इसमें आता है, प्रोमोट्स हाइब्रिड विगर। फिर किन मतलब क्या होते हैं, रिश्तेदार, तो किन्स जो है वो हमारा जो एक किन एरिया होता है वो बढ़ता है, ठीक है। फिर सोशल सपोर्ट आता है, ठीक है। अब इसमें एक्सोगैमी में एग्जांपल आप लिख दीजिए, खासी टोड़ा, ऊपर भी वही है, यही यहाँ पे भी वही है।
तो एज आई हैव सेड ऑलरेडी, हाइपोगैमी और हाइपरगैमी इसको ना साथ में समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो हाइपरगैमी को कहते हैं अनुलोम, हाइपोगैमी को कहते हैं प्रतिलोम। अगर एक फीमेल, ठीक है, ये हम पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल से देख रहे हैं, अगर एक फीमेल एक इंडिविजुअल से शादी कर रही है जो अपने से सुपेरियर कास्ट का है, ठीक है, तो इसे हाइपरगैमी, अनुलोम मतलब एक लड़की है जो ऊपर स्टेटा में जाएगी, ठीक है। ये मनुस्मृति जो हिंदू स्क्रिप्ट है ये इस चीज़ को सैंक्शन करता है ना। ये देखिए इसकी हिपोक्रेसी है, देखिए कि जो आदमी है, ठीक है, अपर कास्ट में जो भी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, नीचे वाले चार्ट में आप समझ जाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो लेट्स डू इट ओवर देयर ओनली, ठीक है। तो ये देखिए मनुस्मृति की मज़ेदार चीज़, अगर आदमी है, ठीक है, और ये फीमेल है, तो ब्राह्मण अगर आदमी है तो वो किसी से भी शादी कर सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से करेगा, अगर वैश्य है तो वैश्य और शूद्र से करेगा, और सिर्फ शूद्र से करेगा, ठीक है। विमेन का देखिए, ब्राह्मण अपनी जो विमेन है उनको एकदम सेक्लूडेड करके एंड दे ट्राई टू मेक देम दे ओन थिंग, कि बाहर नहीं जाए, तो ब्राह्मण होगी तो ब्राह्मण से ही करेगी। क्षत्रिय अगर विमेन है तो क्षत्रिय से ही करेगी और उसके अलावा ब्राह्मण से कर सकती है। वैश्य विमेन है तो वो क्षत्रिय से भी करेगी, ब्राह्मण से भी करेगी और वैश्य से भी करेगी, और शूद्रा विमेन है तो वो सबसे शादी कर सकती है। सो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव ऑपरेशन जो हो रहा है ना विमेन का, एक्सप्लॉयटेशन, ये आप समझ सकते हैं, और इसमें आप पावर समझ पाएंगे कि कैसे ब्राह्मण्स ने एक्चुअली उस टाइम पे इतना स्मार्ट गेम खेला, दे सिक्योर्ड एवरीथिंग फॉर देम। ओके, सो देन मनुस्मृति ने इसकी परमिशन दी है, तो आप समझेंगे कि जब चाइल्ड बॉर्न होगा ना तो उसको जो लोअर स्टेटस मिलेगा, ये वन ऑफ हाइपोगैमी एंड हाइपरगैमी, ये रीजंस है कास्ट सिस्टम के, ठीक है। कास्ट सिस्टम हमने ये टॉपिक पेपर 2 में कंप्लीट किया है, तो कास्ट सिस्टम में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइपोगैमी एंड हाइपरगैमी आर ऑल्सो रीज़न फॉर कास्ट सिस्टम। तो मतलब मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण लड़का है और क्षत्रिय लड़की है, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच वाला उसको जो है स्टेटस मिलेगा। ही विल नॉट गेट द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण, ही विल बी लोअर देन ब्राह्मण, बट ही विल बी समवन जो उसका स्टेटस हाई रहेगा क्षत्रिय से। तो ये चीज़ आपको समझ गया, तो ये लोअर स्टेटस हो जाता है इंसान का। फिर आते हैं हम हाइपोगैमी। हाइपोगैमी मतलब प्रतिलोम, इसका तो सीधा सीधा मना करके रखा है, ठीक है, ये तो करना ही नहीं है। मतलब आप जो है, आप इन द सेंस फीमेल जो है, आपसे लोअर कास्ट के इंसान से आपने शादी करनी ही नहीं है, इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर वुमेन, ठीक है, वरना वो अपनी कास्ट जो है वो खो देगी। इसी के कारण स्पिंस्टरहुड और पॉलीगैमी ब्राह्मण्स में बहुत बड़ा, आपने बैचलरहुड भी बहुत बड़ा। तो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण्स में कुलीनिज्म होता था बंगाल में, तो बंगाल में एक शॉकिंग केस आई थी जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही वाज वर्किंग फॉर दिस कॉज, कि 82 ईयर्स ओल्ड ब्राह्मण ही मैरिड अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। एंड सती की प्रथा ये थी कि अगर आपका बच्चा नहीं है, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ चाइल्ड, देन आपको आपके पति के साथ सती होना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि 82 साल का बुड्ढा इज मैरिंग दिस 12 ईयर्स की लड़की एंड ही डाइड। नाउ व्हाट दिस गर्ल हैज डन, इसने क्या गलत कर लिया अपनी ज़िंदगी में, बट शी ऑल्सो हैज़ नो चाइल्ड, तो शी विल हैव टू गो एंड जंप ऑन द पायर ऑफ हर हस्बैंड। बट अगर ये मर जाए तो इस बुड्ढे को नहीं मरना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज एक्चुअली द वे कि आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो एक पूरी कम्युनिटी को। एक अगर मैं एक वुमेन को एक पूरी कम्युनिटी में डाल दूँ तो दिस इज़ द वे यू एक्सप्लॉइट देम, विच इज़ वेरी बैड। तो ये आपने बेसिकली समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट मतलब क्या होता है? फॉरबिडन, जिस चीज़ की आपको परमिशन नहीं है, नहीं करनी चाहिए। ये सोशल सैंक्शन, सोशल जैसे हमारा स्टेटा होता है उसमें एक मॉरल कोड होता है, इसको उसका वायलेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको तोड़ते हो तो ऐसे समझते कि कैटास्ट्रोफिकल इवेंट जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरनैचुरल्स को आपने एंगर कर लिया हो तो बहुत से ट्राइबल्स मानते हैं कि इसके कारण रेन नहीं होगा, ड्रॉट होगा, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स आएंगे। सो दैट इज़ समथिंग दैट
the tribals believe, because that is what is there in the what we say culture. ये जैसे मैं बताया इंसेस्ट टैबू जो है ना, दिस इज समथिंग जो ऑल ओवर मॉडर्न सोसाइटी, रैशनल सोसाइटी में ऑल ओवर कल्चर प्रेजेंट है, बट फॉर्म्स में डिफरेंट होता है. बट दिस इज़ नॉट रूल और समथिंग, ठीक है, इसके एक्सेप्शन से वो आते हैं. इसका मतलब क्या होता है इंसेस्ट टैबू में? इंसेस्ट मतलब होता है कि पीपल प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और मैरिज बिटवीन द पीपल ऑफ क्लोज, लाइक ब्लड रिलेटेड और क्लोजली रिलेटेड. तो ये प्रोहिबिशन होता है सेक्सुअल यूनियन और मैरिज के लिए, ठीक है. एक्सेप्शन है इसमें, जैसे आइनो कम्युनिटी, फरोहा इजिप्ट की जो कम्युनिटी है ना, इजिप्ट की क्लियोपात्रा, वो आपको याद होगा. तो फरोहा कम्युनिटी, इनका कम्युनिटी, ठीक है, ये जो है बेसिकली यहाँ पे अलाउड था, ये करते थे. जैसे कि फरोहा में ऐसा था कि वो मानते थे कि किंग एंड क्वीन वो भगवान के रूप है, यार भगवान ही है. तो कैसे भगवान कैसे एक कॉमन इंसान के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन में आ जाएगा ना, तो इसीलिए ब्रदर सिस्टर यूनियन होता था. इसका जो ब्रीच है, अगर मान लीजिए कोई इंसेस्ट टैबू नहीं फॉलो करता तो ये पनिशेबल था, फाइन, बहुत सारे एक्सकम्युनिकेशन, आपको बर्खास्त कर देते थे, सुपरनैचुरल का डर था. अपने गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखा होगा तो उसमें सर्सी एंड जेमी लैनिस्टर आपको याद होगा, है ना. तो दैट इज़ समथिंग इंसेस्ट टैबू, बट उनका अलग ही चलता था. फिर फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखते हैं इंसेस्ट टैबू के. मालिनोस्की कहते हैं कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंसेस्ट टैबू, मतलब बेसिकली ये नहीं होना चाहिए ना फैमिली में, वरना अगर ऐसा हो गया, सन, ये मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, ये डॉटर है, ठीक है, सो इनका ही है, तो डॉटर और फादर में एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, फीमेल मदर और सन में हो जाए ना, तो ये तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत डिट्रीमेंटल हो जाएगा. सो दैट इज़ समथिंग मालिनोस्की से कि इंसेस्ट टैबू जो है इसलिए स्टेबिलिटी के लिए खतरा है. उसके बाद ईबी टाइलर ने कहा कि उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से. उन्होंने कहा कि किन, हमको देखो ईबी टाइलर का और आई थिंक इट्स सीएल स्ट्रॉस, तो इनका ऐसा था कि इनको किन्स चाहिए, किन्स मतलब रिलेटिव, ठीक है, रिश्तेदार चाहिए. कि अगर इतनी ही फैमिली रहेगी ना, ये तो 4 ही लोगों की फैमिली होगी मान लो, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में. बट अगर ये वाली फैमिली अपनी जो ब्रीडिंग है वो ऐसे कर लेती है ना, ये इसने के साथ और ये इसके साथ ब्रीड कर लिए इन्होंने मान लो, तो नाउ दिस फैमिली बिकम्स बिग. 1 2 3 4 और ये टोटल 8 लोगों की फैमिली होगी. सो दैट इज़ व्हाट ईबी टाइलर सेड. सिगमंड फ्राउड कहते हैं कि सिगमंड फ्राउड ने बेसिकली ये चीज़ बोली, इडिपस कॉम्प्लेक्स, जोकोस्टा कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. इडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब सन एंड मदर, जोकोस्टा मतलब डॉटर एंड फादर, जोकोस्टा मतलब मदर एंड सन, और इलेक्ट्रा मतलब डॉटर एंड फादर. सो अगर सेक्सुअल कहते हैं उसको टेंशन्स अगर हाई है या अट्रैक्शन है अपोजिट जेंडर्स में, तो दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी. सिगमंड फ्राउड ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा होता है फैमिलीज़ में, तो जो इंसेस्ट है वो ही इस चीज़ को रोकता है. फिर वेस्टर्न मार्क ने फिर वही अच्छी वाली एक थ्योरी दी. उन्होंने कहा कि इनब्रीडिंग जो है उसके कारण एबनॉर्मलिटीज़ निकलती है. जैसे हमने शुरुआत में एंडोगैमी के साइड इफ़ेक्ट में देखा था कि जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, एक रेसेसिव होता है, तो ये रेसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ना ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. अभी रेसेसिव कैरेक्टर्स ऊपर आ जाते हैं तो इसमें जो चाइल्ड होगा वो एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि पीपल अवॉइड दिस थिंग. अब दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. अब थोड़े से इसमें और 2-3 चीज़ें. टैबूज़ में आप टाइप्स ऑफ टैबू में लिख दीजिए. फूड टैबू, ठीक है, एनिमल टैबू, आप इसको मार सकते नहीं मार सकते. ट्री टैबू, ठीक है, उसके बाद क्लोथ, ये भी टैबू हो सकता है. कलर, ठीक है, उसके बाद आप किसी की जय मतलब हेल जैसे ना, ये भी नहीं हो सकता. बिलीफ का टैबू भी होता है कि अगर आप एक रिलीजन में मानेंगे तो दूसरे में नहीं मान सकते. सो टैबू इज़ बेसिकली प्रोहिबिशन, ठीक है. इंसेस्ट का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द क्लोज पीपल. टैबू का मतलब होता है सिर्फ प्रोहिबिशन. अगर टैबू ही आता है तो टैबू में आपको ये सारी चीज़ें, फूड टैबू, एनिमल टैबू, ट्री टैबू, क्लोथ, बिलीफ, ये सारी चीज़ें आएंगी. और इसमें एक और चीज़ आएगी,
इंसेस्ट, ठीक है। अगर सिर्फ टैबू आता है तो क्वेश्चन में, अगर इंसेस्ट टैबू आता है तो फिर आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। उसके बाद अवॉइडेंस जो है रिलेटिव, मतलब क्या होता है कि सिगमंड फ्रॉइड और फ्रेजर ने स्टडी की थी, उन्होंने वेड्डा श्रीलंका में जो कम्युनिटी है उसको स्टडी किया, तो कहते हैं कि ब्रदर सिस्टर्स में एक अवॉइडेंस, जनरली अवॉइडेंस होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो है जिस टाइम पे भाई खाना खाएगा उस टाइम पे सिस्टर ब्रदर एक साथ खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम पे दोनों अकेले नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें फॉलो करती है। ट्रॉबरी एंड आइलैंडर, ठीक है, ये पॉलिनेशियन सोसाइटी है, तो पॉलिनेशियन सोसाइटी है, इसको ना मालिनोस की, ये फंक्शनलिस्ट है, आएंगे आगे। जैसे हमने ऊपर एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा है, तो जब भी फंक्शनलिज्म आएगा तो मालिनोस की आएंगे। तो ट्रॉबलियन आइलैंड में भी ब्रदर सिस्टर वाला सेम है। फिर एक हमने इंडियन सोसाइटी में नोटिस किया होगा, फादर इन लॉ एंड डॉटर, बहू और ससुर जी में एक सॉर्ट ऑफ अवॉइडेंस होता है, एक दूसरे के सामने सामने वो नहीं करते। फिर टायलर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी हो जाती है ना, तो उसके कारण भी, जैसे अगर बहू आ जाती है ना तो बहू अपने साथ नए नए तरीके लाती है, तो वो इस फैमिली को अपने तरीक़ों से कन्वर्ट ना कर ले, तो अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, सास से जो पावर है वो बहू में आ जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव अबाउट दिस थिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीधा सीधा सवाल आता है इस पर, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मोनोगैमी, पॉलीगैमी और ग्रुप मैरिज, बस 3 टाइप है मैरिज के। अब मोनोगैमी में 2 टाइप की होती है, एक होती है सीरियल मोनोगैमी और एक होती है नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी का अर्थ होता है कि एक बार आदमी एक ही फीमेल के साथ शादी करेगा, जैसे कि हिंदू सोसाइटी ट्रेडिशनली, कि अगर एक आदमी है तो एक ही बीवी होगी। नॉन सीरियल मतलब ज़िंदगी भर एक ही बीवी होगी, अगर मान लो कि वाइफ मर जाए या हस्बैंड मर जाए तो अदर पर्सन विल नॉट मैरी। सीरियल में ऐसा होगा कि एट अ टाइम एक होगी, अगर वो मर गई तो दूसरी हो जाएगी, वो मर गई तो तीसरी आ जाएगी, सेम गोज फॉर विमेन। बट नॉन सीरियल में क्या होता है, ये सीन नहीं है। नॉन सीरियल में एक सिंपल सीन है कि आपका एक ही पार्टनर होगा जो लाइफ टाइम होगा। इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख दीजिए हो, खासी और संथाल, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो बेसिकली यू विल डेफिनेटली फेच गुड मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं पॉलीगैमी। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, गैमी मतलब स्पाउस, समझिए कि एक से ज़्यादा पार्टनर। तो पॉलीगैमी 2 टाइप की होती है, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। आपने गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा, उससे लीजिए वर्ड गाइनी, मतलब फीमेल का। अगर एक आदमी है और उसके बहुत सारी वाइफ्स है तो पॉलीगाइनी। ऐसे समझिए कि एक ताऊ जी है, एक चाचा जी है, चाचा जी की 2 बार शादी हो गई है, ठीक है, तो पॉलीगाइनी। चाचा जी एक है और 2 चाचियाँ है, पॉलीगाइनी। अब मान लीजिए कि दोनों चाचियाँ सगी बहन है, ठीक है, सगी बहन है, तो ये हो गया सोरोरल, मतलब सगी बहन है। मान लीजिए चाचा जी सॉर्ट ऑफ रंगीन थे, तो उन्होंने एक अलग वाइफ है और दूसरी अलग वाइफ है। एक मान लीजिए जम्मू कश्मीर से उन्होंने शादी करी और दूसरे तमिलनाडु से करी, तो ये नॉन सोरोरल हो गया, ठीक है। पॉलीएंड्री, एंड्री मतलब मेल, पॉली मतलब बहुत, तो एक फीमेल और बहुत सारे मेल, ठीक है। जैसे कि एक फीमेल है और उसके 3 पति है। अब ये चीज़ जो है सेंट्रल इंडियंस को या सदर्न इंडियंस, इनको थोड़ा सा ये चीज़ मतलब अलग लगेगी, जो सिटी ड्वेलिंग पीपल है उनको। तो इसमें भी 2 है कि ये जो 3 होंगे ये भाई होंगे, ठीक है, तो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। नॉन फ्रैटर्नल मतलब ये 3 अलग अलग, अब दोस्त भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। सो रीज़न क्या है पॉलीगाइनी के? पॉलीगाइनी के रीजंस तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई ज़्यादा रीज़न नहीं होता है इसमें, तो आप समझ लीजिए क्या ही रीज़न होगा इसका। एक बेसिक रीज़न होता है कि वेमेन जो है चाइल्ड बियर नहीं कर सकती, तब सेकंड शादी कर लेते हैं। सेकंड कैन बी लव, थर्ड कैन बी आई डोंट नो। पॉलीएंड्री में बेसिक रीजंस होते हैं, जैसे कि ब्राइड वेल्थ, मतलब इसको ब्राइड प्राइस समझिए। आप जब शादी करते हो, ठीक है, तो मोस्टली अभी यहाँ पे मेन सोसाइटी में आपको डाउरी पता होगा, है ना, बट ट्राइबल सोसाइटीज़ में उल्टा होता है। जब वेमेन जो होती है वो शादी के बाद किसी और के घर जाएगी,
तो बेसिकली जो जिस घर से जाएगी उनको लॉस हुआ है ना, कॉम्पनसेशन तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका लेबर लॉस हुआ है। तो उनको ब्राइड प्राइस दी जाती है, उसमें एक तो एनिमल दिया जाएगा या मतलब कैटल दिए जाएंगे, मनी दिए जाएंगे, या बहुत सी अदर चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट मोस्टली ट्राइबल्स कांट अरेंज दिस थिंग, तो दे अरेंज इट इन अ ग्रुप एंड देन एज अ ग्रुप दे मैरी अ गर्ल, ठीक है। तो ये फ्रैटर्नर और नॉन फ्रैटर्नर, इसमें भी एग्जाम्पल में टोडा, कोटा, सिन्हाली और नायर, आप इतना लिख दीजिए। ग्रुप मैरिज में एग्जाम्पल है मार्क्विसान ऑफ पॉलिनेशिया, तोड़ा खासा, मतलब 1 2 3 4, 4 लड़के 4 लड़कियां एक साथ शादी कर लेंगे। अब इसकी शादी हर एक के साथ हुई है, ठीक है, और उसी तरह से इस लड़की की शादी भी हर एक लड़के के साथ हुई है। सो इट मीन्स दैट एवरीवन हैव क्लेम्स ऑन एवरीवन, दैट्स इट। तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शन ऑफ मैरिज। तो शादी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ओके, तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, उसको सबसे पहले डील करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब क्या क्या करना है इसमें? इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी आती है, इसमें रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है, ये 2 चीज़ें आ गई। इकोनॉमिक में ब्राइड प्राइस, डाउरी आ गई, ठीक है। और क्या होता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैरिज में जो है हस्बैंड जितना बाहर काम करता है उतना ही काम जो है लेडी घर में करती है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट, सिल्वर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी, ये लिखना है आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया। साइकोलॉजी में एक होता है इमोशनल, ठीक है, फिर एक होता है मेंटल पीस, अभी नहीं रहा ये चीज़ बट एक ज़माने में हुआ करता था। सो इमोशन हो गया, मेंटल पीस हो गया, ये आ गया। सोशल में होता है कि लेजिटिमेशन होगा एक सॉर्ट ऑफ, है ना, सारे रिलेशन को। फिर अपब्रिंगिंग होगा चाइल्ड का। उसके बाद एक फैमिली होती है हमारी, है ना, तो ग्रैंडपा की केयर जो है बहू करती है। फिर आपके फादर की जो केयर होगी वो आपके बच्चे करेंगे। फिर आपकी केयर शायद आपके पोते पोती करें। सो दिस इज़ अ सोशल। उसके बाद सोशल में बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, उसमें आती है। फिर मैरिज एक्चुअली एजुकेशनल में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मान लीजिए कि एनकल्चरेशन, बच्चा जो है वो सीखेगा ना, ग्रैंडफादर वगैरह से सीखेगा, तो फैमिलीज में ही तो ये चीज़ें होगी। और किन एक्वायर, ई.बी. टाइलर, ठीक है। ये फंक्शंस में आप अकॉर्डिंग टू मालिनोव्स्की लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे फंक्शन वर्ड आ गया ना, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कई फंक्शंस आता है ना, अगर वो सोशो कल्चरल से रिलेटेड है, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है और फंक्शन ये वर्ड आया है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मालिनोव्स्की डाल दीजिए, क्योंकि मालिनोव्स्की इज़ अ फंक्शनलिस्ट। और मैं आगे जब हम उनको स्टडी करेंगे तो उनके बुक्स है, जैसे कि मार्क्वेस ऑफ पॉलिनेशिया और आर्गोनॉट्स ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये इनके बुक्स है। तो इसमें आप मेंशन कर देंगे तो भी इट विल बी गुड, बिकॉज ही इज़ अ फंक्शनलिस्ट एंड उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ कही होगी। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन अबाउट मैरिज। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आई एम 100% श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। अब आते हैं मैरिज रेगुलेशंस पे। ऐसे नहीं ना आप किसी से भी शादी कर सकते हो। मतलब कल आप उठे और आप कहने लगे कि मम्मी आई वांट टू मैरी सम पर्सन, ओके। Choosing one's life partner is a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution according to Supreme Court. बट जब आप लाइफ पार्टनर चूज करते हो तो आप बेसिकली कुछ नियम फॉलो करते हो। सबसे पहला होता है कि प्रेफरेंस, मतलब आप इन लोगों को जो है प्रेफरेंस देंगे। फिर होता है प्रिस्क्राइब्ड मतलब इनसे आप कीजिए, ऐसी उम्मीद होती है कि आप इनसे करिए। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ मॉरल प्रेशर। उसके बाद प्रोस्क्राइब्ड मतलब इनसे तो आपने करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसको एक फनी एग्जांपल में आप समझिए। आप मान लीजिए एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, तो
प्रेफरेंस क्या होगा आपके लिए? प्रेफरेंस मान लीजिए आपके मम्मी कहेंगे कि आप अपने जो है मामा की बच्ची से शादी कर ले, ठीक है, मतलब क्रॉस कजिन मैरिज आप कर ले, ये चीज़ होगा। प्रोस्क्राइब्ड में आपके मतलब इनकी मम्मी कहेंगी कि आप हिंदू लड़की से शादी नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइब मतलब जैसे ये बता दिए प्रिस्क्राइब। प्रेफरेंस मतलब वो कहेंगे कि आप जो है आप अपनी जो फैमिलियर होगा आप उसमें प्रेफरेंस दीजिए। ये हो गया, ये हो गया प्रिस्क्राइब कि आप इससे करिए, कोशिश करिए, ठीक है। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप मान लीजिए एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो सबसे पहले प्रोस्क्राइब्ड होगा कि मम्मी कहेगी बेटा मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करना है। प्रोस्क्राइब एकदम सिंपल चीज़ है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस क्या कहेंगे? प्रेफरेंस कहेंगे कि आप जो है प्रेफरेंस जो है आप हमारी चॉइस की जो लड़की होगी उससे करिए, ठीक है। उसके बाद तो प्रिस्क्राइब करें, सॉरी हाँ, प्रिस्क्राइब मतलब वो बेसिकली आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप इनसे करिए, इनके बेटी से करिए, उनके बेटी से करिए, तो दिस इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड। ये बेसिक चीज़ है, आप समझ गए। अब इसको टेक्निकलिटी में आते हैं, ठीक है। अब आंसर क्या लिखेंगे? प्रिस्क्राइब्ड मैरिज मतलब कास्ट एंडोगैमी, आप अपने कास्ट के अंदर की लड़की से शादी करेंगे, गोत्र से बाहर की लड़की से शादी करेंगे। फॉर एग्जांपल गोंड का ऐसा है कि उनको अपनी क्रॉस कजिन से शादी करनी पड़ती है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इसको कहते हैं दूध लौटवा, ठीक है। इट मीन्स दूध मीन्स मिल्क, लौटवा मीन्स रिटर्न, तो रिटर्न ऑफ मिल्क, ठीक है, इसको कहते हैं, जैसे बेसिक चीज़। फिर नेक्स्ट है कादर्स में भी होता है कि आप प्रिस्क्राइब्ड होता है कि आप पैटर्नल कजिन से शादी करेंगे। पैटर्नल मतलब पापा के साइड के जो हो गए ना कजिन्स, उनमें शादी करेंगे। ये बेसिक चीज़ है, आपने समझ गई। जैसे कि इवन साउथ इंडिया में नीस और जैसे कि मान लीजिए ये ठीक है, ये जो है ये इनकी बहन है, इनकी शादी हो गई और इनको लड़की हो गई, तो ये दोनों की भी शादी हो सकती है, प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। साउथ इसमें अंकल नीस मैरिज कहते हैं इसको। यूनिट 9 में हम इसके बारे में इन ब्रीडिंग में फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें ऐसी ही है, इसका कुछ एडवांटेज है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द सॉलिडारिटी। अगर आप अपने फैमिलियर लड़की से ही शादी करते हैं, मतलब आपके रिलेटिव्स में ही शादी करते हैं, तो एक होता है कि आपके रिलेटिव्स फिर वो परेशानी क्रिएट नहीं करते जैसे नॉर्मली रिलेटिव्स परेशानी क्रिएट करते हैं, और आपकी जो सॉलिडारिटी है वो बढ़ती है, फैमिली के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इंटर फैमिलियर टाइज जो होते हैं वो भी अच्छे बनते हैं। उसके बाद एलाइज मिलते हैं हमको जनरेशन्स के लिए, ये बेसिक चीज़ होगी। अब प्रेफरेंशियल में किस किस शादी को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, तो पैरेलल कज़न मैरिज, ठीक है, हमने अभी देखा था, इसमें लुशाई और सेमा नागा ये दो कम्युनिटी आएगी। फिर क्रॉस कज़न में है तो खासी, ओरान और मुस्लिम कम्युनिटी आएगी, ठीक है। प्रेफरेंशियल में एक्सचेंज ऑफ वुमेन, ये ईगैलिटेरियन सोसाइटी, ईगैलिटेरियन मतलब जहाँ पे लड़का लड़की एकदम सिमिलर स्टेटस मिलता है, सो ये हो गया। उसके बाद सोरोरेट, सोरो एस फॉर सोरो, एस फॉर आपकी साली जी जो होती है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो अगर मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, उसने बी से शादी कर ली, बट समवॉट बी इज़ डेड, तो जो बी की सिस्टर होगी ऐसा होगा कि आप प्रिस्क्राइब करते कि आप इनसे शादी करें, तो ये सोरोरेट होगा। सिमिलरली जब बेसिकली ए मेल है और बी फीमेल है, तो ए मान लीजिए किसी कारण मर जाता है, तो आप जो है ए डैश मतलब उनके भाई से शादी करेंगे, उसको लेविरेट। तो इसको एस एस से याद रखना, सोरो मतलब साली से आप अपनी शादी करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल्स में आप ये चीज़ें मेंशन करिए, खरिया, खासी और ओरांस, ये तीन कम्युनिटी। पैरेलल कज़न में लुशाई क्लैन जो है असम में, इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है जोकिंग रिलेशन। अब इसको ना सिंपल सवाल है, सिंपली समझाता हूँ। जोकिंग रिलेशन मतलब आपने देखा होगा कि देवर और भाभी का एक
मजाकिया रिलेशन होता है, ठीक है, या जीजा और साली इनका एक रिलेशन होता है, तो इसको जोकिंग रिलेशन होता है कि एक दूसरे की चुटकी लेते रहते हैं, दैट इज इट। अब इसमें क्या होता है, ये इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल प्रेफरेंस मैरिज, मतलब ऐसा है कि सोरोरेट तो है, अगर जीजा साली में वो जो होता है ना आधी घर वाली सॉर्ट ऑफ कहते हैं उसको, तो जोकिंग रिलेशन में इसमें है कि पॉसिबिलिटी तो है, शादी की पॉसिबिलिटी है, और अगर देवर और भाभी में ये फनी जो ये होता है जोकिंग रिलेशन होता है, उसमें भी ये लेविरेट में उनके साथ होता है। फिर इसमें होता है कि फ्रेंडलीनेस जो है वो बहुत हाई होती है अकॉर्डिंग टू रैडक्लिफ ब्राउन, अकॉर्डिंग टू रैडक्लिफ ब्राउन फ्रेंडलीनेस बहुत होती है। फिर होता है कि फैमिलियरिटी मतलब एक दूसरे की जो मतलब एकदम कंफर्टनेस हो जाती है, ठीक, कंफर्टेबल हो जाते हैं, ओवर कंफर्टेबल हो जाता है। फिर इंटरेक्शन जो है बढ़ जाता है, फैमिलियरिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक मजाक होता है, ठीक है, इसमें फिर अब्यूज़ भी होता है, नॉट जस्ट मजाक, ठीक है, बैंटर्स होते हैं, टीजिंग होती है, ठीक है, छेड़खानी वगैरह ये चीज़ें इसमें होती है। ये एक तो सिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल, मतलब एक तो दोनों एक दूसरे की चुटकियाँ काट सकते हैं, या सिर्फ एक ही होगा जो दूसरी की ऐसे ही छेड़ पाएगा। सो अगर एक ही छेड़ पा रहा है मतलब असिमेट्रिक, दोनों छेड़ पा रहे हैं मतलब सिमेट्रिक। उसके बाद सोरोरेट और लेविरेट इंडिकेटर आपने समझ गए होंगे इसका मतलब। सोरोरेट मतलब जीजाजी और साली, लेविरेट मतलब भाभी और देवर। सो दिस इज इट। इसके बाद एक क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, इसमें से मतलब यूपीएससी ने सारे ही सवाल पूछे बट ये रिसेंटली आ चुका है, वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट। तो इसका एक याद रखिए, स्पाइस नेट, ठीक है, ये वर्ड मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, तो आप इतना लिखेंगे तब तक आप समझ जाएंगे व्हाट आई एम सेइंग। वर्ड याद रखना है, वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट अगर आपके दिमाग में आता है या क्वेश्चन पेपर में आता है, चुपचाप से वहाँ लिख लीजिए स्पाइस नेट, ठीक है, या स्पाइस 10, जो भी आप लिख दीजिए। अब नेक्स्ट, सबसे पहले होता है वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट। आप निगोसिएशंस के साथ निगोसिएशंस करेंगे, मतलब उनके साथ जो है निगोसिएशन करेंगे। इसमें एग्जांपल है सिवाई सोलोमन आइलैंड पे, एबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया वाले एंड अंडमानीज, ये कम्युनिटीज़ में होता है निगोसिएशन, एक्सचेंज। ये इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ में होता है, या फिर इवन आप सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में आप जाएंगे तो आपको एक्सचेंज मिलेगा। मतलब जैसे कि एक होता है कि सिस्टर एक्सचेंज, कि ए की बहन बी से शादी करेंगे और बी के बहन ए से शादी करेंगे, एक्सचेंज। फिर सर्विस गोंड्स में होता है, ठीक है, इवन ये साइबेरिया में जो चुकचीज कम्युनिटी होती है। उसके बाद ये नॉर्थ इंडियन में अलास्का में जो इन्यूट्स, ठीक है, इन्यूट्स होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। सर्विस मतलब क्या होगा कि गोंड में बेसिकली ये 3 साल से 10 साल 5 साल की सर्विस ऑफर करते हैं, तब जाके उनको वाइफ मिलती है। प्रोबेशन में कुकीज़ में होता है मणिपुर में, ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसा है प्रोबेशन में कुकीज़। तो प्रोबेशन में क्या होता है कि जो सॉर्ट ऑफ ट्रायल होता है कि लड़की जो होगी वो अपने घर में जाएगी और वहाँ पे फिर वो रह के देखेगी उसको कैसे लगता है, काम वगैरह सारी चीज़ें देखेगी, फिर हाँ ना जो भी होगा बात की बात है, ठीक है। सर्विस समझ गया, एक्सचेंज समझ गया, निगोसिएशन हो गया, प्रोबेशन हो गया। फिर कैप्चर, आप जाएंगे मार्केट में, बोरी डालेंगे, लड़की को उठाएंगे, वो मांग भर देंगे, आपकी शादी होगी। नागाज में होता है याहो मामो, वेनेजुएला में कम्युनिटी है यानो मोमो करके, उनमें होता है। इंडिया में खारिया में होता है और बिरबोर में भी होता है। इंट्रूजन मतलब क्या है, लड़की घुस जाएगी आपके घर में, सीधा सीधा घुस जाएगी और फिर घर वाले जो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी उसको बैड ट्रीटमेंट दे सकते हैं देंगे, बट अगर वो वहाँ टिक गई तो वह बीवी बन जाएगी, नहीं तो फिर निकल गई तो निकल गई। ये बिरबोर में होता है, हो में होता है और कमार में होता है, ठीक है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि इंट्रूजन हमारे साथ क्यों नहीं होता है ना। फिर होता है इलोपमेंट। इलोपमेंट मतलब लेके भाग जाना, सीधा सीधा कार बीच में होता है, लेके भाग जाओ। ट्रायल मतलब कुछ इवेंट होगा, जैसे कि व्हील्स में क्या होता है, एक ऐसे डंडा होता है, ठीक है, इस पे ना ऑयल लगाया होता है, यहाँ पे हनी ऑयल वगैरह लगाया होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ होती है, यहाँ पे जो है ना ऐसे लेडीज़ ऐसे खड़ी होती है डंडे लेके। अब आदमी जो है ना इधर से वो दौड़ते हुए आएंगे और इस पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तक लेडीज़ जो है उसको मारती भी रहेंगी। तो जो ऊपर चढ़ के ले लिया उसको समझ गो हिल बी वेरी हैप्पी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे हाथ तो खोल के,
वरना डंडे खाते रहेंगे। स्पाइस 10 या स्पाइस नेट का सिंपल ये चीज़ है, सर्विस, प्रोबेशन, इंट्रूजन, कैप्चर, इलोपमेंट, ट्रायल, एक्सचेंज, नेगोशिएशन, एज सिंपल एज दैट। ये सवाल आएगा, आप स्पाइस 10 डालिए, स्पाइस नेट डालिए और आप यू गुड टू गो। फिर लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का मैरिज पेमेंट, ठीक है, इसके बाद ये यूनिट हो जाएगा ख़त्म। तो मैरिज पेमेंट में आपने बहुत बार सुना होगा कि डाउरी करके, ठीक है, बट डाउरी इज़ नॉट समथिंग कि एकदम एक्सेसिव में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये चीज़ नहीं है ज़्यादातर। ये जो ट्राइब कास्ट के पास में आ रही है, मतलब सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी उसके पास आ रही है, तब जाके डाउरी में उनका कन्वर्जन हो रहा है। अदरवाइज ब्राइड वेल्थ, इसको ब्राइड प्राइस कहते थे पहले, बट दिस इज समथिंग, ये सही टर्म नहीं लगता, इसीलिए इन्होंने इसको स्विच कर दिया ब्राइड वेल्थ। थर्ड है एक्सचेंज ऑफ वुमेन। एक्सचेंज ऑफ वुमेन मतलब इसमें कोई फिजिकल पेमेंट नहीं होगा। इसकी सिस्टर, मतलब ये मान लीजिए कि ये ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, और ये ब्रदर सिस्टर है, तो ये दोनों शादी कर लेंगे, ये दोनों शादी कर लेंगे, बात ख़त्म। एक्सचेंज ऑफ फीमेल। अब बेसिकली हम देखते हैं इन तीनों इंस्टीट्यूशन से। तो मैरिज अगर कोई आता है तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि मैरिजेस जो भी है, हम डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक फंक्शनल जो मैरिज का फंक्शन है उस मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, ट्रांजैक्शंस होता है, सोशल एस्पेक्ट रिलेटेड होता है, ठीक है, मेथड होता है एक्वायर, और उसके बाद रूल्स होते हैं। ये चीज़ हम अभी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सबसे पहले ब्राइड वेल्थ पे। ये 44% ऑफ सोसाइटीज़ में होता है। अफ्रीका और ओशनिया इसमें बहुत कॉमन है, ठीक है। ब्राइड वेल्थ मतलब क्या होता है, एक सिंपल चीज़ है कि ये जो फीमेल की फैमिली है और ये मेल की फैमिली है, तो मेल की फैमिली फीमेल के फैमिली को जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे फूड देगी, कैटल देगी, मनी देगी, स्पीयर्स देगी, क्लोथ दे सकती है, ठीक है, गिफ्ट्स देगी, पिग्स कैटल में तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैंकेट्स आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मेल की फैमिली देगी फीमेल के फैमिली को। समझ में आया, ये उल्टा होता है डाउरी के, बट दिस इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली शुड बी द थिंग। और अगर हम इक्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं तो बोथ ऑफ द थिंग शुड नॉट बी देयर। इसको कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द फैमिली। इससे क्या होता है कि जो राइट होता है ना विमेन के चिल्ड्रंस पे, वो मिल जाता है। क्योंकि अभी मान लीजिए कि ब्राइड वेल्थ मतलब क्या है कि मेल की फैमिली जो है वो फीमेल के फैमिली को देगी, है ना, जो भी इतना सारा वेल्थ है ये देगी। अब अगर मान लो इन्होंने नहीं दिया तो फीमेल का जो भी फीमेल बच्चा होगा उस पर इनका कोई ये नहीं होगा। तो इसकी जो फैमिली है, इन फीमेल की जो फैमिली होगी उनका कंट्रोल होगा इस बच्चे पे। एकदम सिंपल चीज़ है। तो इसकी जो भी ब्राइड वेल्थ आएगी वो इस फैमिली में जाएगी, इस फैमिली में नहीं जाएगी। तो जैसे लाइफ स्टॉक दे दिया, स्पीयर्स, ब्लैंकेट्स, फूड, मनी, कैटल, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएगी। जैसे कि चुकची कम्युनिटी जो है वो रेंडियर देती है, नवाजो जो कम्युनिटी है वो शिप देती है, न्यूर्स कैटल देते हैं, और सोमालिया में जो है भाले देते हैं, मतलब स्पीयर्स देते हैं। इससे क्या होता है कि गर्ल्स के जो पेरेंट है उनको एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। ये लॉस ऑफ लेबर जो होता है ना उसका कॉम्पनसेशन के तौर पे। फिर अगर इफ़ वुमेन, अगर मान लो कि वुमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो ये जो ब्राइड प्राइज होगी या ब्राइड वेल्थ होगी ये रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ब्राइड मर जाती है, ठीक है, तो उस केस में उनको एक तो सोरो रेट वाला ऑप्शन एक्टिवेट कराना होगा, मतलब जो ब्राइड की डेथ होगी उसकी सिस्टर से आप फिर से शादी करा दो, या फिर आप ब्राइड प्राइस रिटर्न करा दो। अगर डाइवोर्स होता है तो ब्राइड प्राइस रिटर्न करनी होती है। कंडीशन है कि किसकी गलती से हो रहा है। अगर विमेन की गलती से हो रहा है तो देना पड़ेगा, अगर मेल की गलती से है तो नहीं देना पड़ेगा। और सच सोसाइटी जो है ना, इसमें जो स्टेटस होता है विमेन का वो बहुत लो होता है, ठीक है। बिकॉज ऐसा है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी मतलब विमेन के अलावा नहीं चल सकती। ये सिमिलर चीज़ है कि किसी मेल के बिना भी नहीं चल सकती। सोसाइटी का ऐसे कि लो स्टेटस मिल जाता है विमेन को, अगर उनके लिए मान लो कि उनको खरीदने के लिए पैसे दे गए, ठीक है। फिर आता है डाउरी।
8% ऑफ सोसाइटीज़ में डाउरी होता है। यूरोपियन और इंडियन सोसाइटीज़ में ये चीज़ बहुत कॉमन है, आप मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटीज़ में होता है, जैसे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा स्ट्रेटिफिकेशन है, डाउरी उसमें एक इम्पैक्टफुल काम होता है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि ये बेस्ट ग्रूम अट्रैक्ट करती है कि बोली लगती है भैया, अगर आप कलेक्टर है ना, अगर आप कलेक्टर है तो 5 करोड़ मिल गए, ठीक है। अगर मान लो आप PSI है तो 10 लाख मिल गए, ठीक है। अगर आप क्लर्क है तो 5 लाख मिल गए। तो दिस इज समथिंग बेस्ट ग्रूम। आप अपने बच्चे के लिए कौन सा ग्रूम ला रहे हो, बेस्ट ला रहे हो ना, तो फिर ये आपका मेन्यू प्राइस है, ये देना होगा। फिर जो है इसके कारण जो है ना विमेन की रिस्पेक्ट ये होती है कि मतलब मैंने, पता है वो विमेन कहती है कि मैंने अपने इससे 1 करोड़ लाया, ठीक है, या मैंने आधा किलो सोना लाया, तुमने क्या लाया। मतलब बेसिकली ये होता है कि मैंने मेरे घर से लाया, ये AC मेरे घर का है, TV मेरे घर का है ना। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एक रिस्पेक्ट मिलती है फिर वुमेन को। और यही चीज़ होती है जो इन लॉज से फिर ना उसको प्रोटेक्ट भी करती है, कि वरना इन लॉज जो है वो हरासमेंट कर सकते हैं, पता चला कुटाई वगैरह होती है ना, मार देते हैं, तो बहुत बुरी चीज़ होती है, वो नहीं होनी चाहिए। आई एम सेइंग ऑन अ लाइटर टोन यहाँ पे, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू विच is going on in the society and which should not actually be even their existence में नहीं होना चाहिए। फिर होता है बेटर अपकीप ऑफ वुमेन। अगर डाउरी आती है तो ऐसे माना जाता है कि चलो भैया अभी हमने पैसे दे दिए, सॉर्ट ऑफ नहीं, उनको तो सही रखेंगे हमारी बच्ची को, ऐसे उनका, बट दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। फिर होता है इनडायरेक्ट डाउरी। ये सबसे अच्छी डाउरी होती है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने एक दिखा था, एक केस थी, मैं सुनी थी कि उस बंदे ने UPSC क्लियर किया, तो बट उसका एकदम छोटा सा ऐसे घर था, ठीक है, एकदम होता ना ऐसे इसका तब पतड़े वगैरह का घर होगा। एक आदमी था जो वहाँ का ना रिच बिजनेसमैन था, तो ही केम, बात हुई, ठीक है, उसके पेरेंट्स से, उसने लैंड भी दी, घर भी बनवा दिया, सब कुछ, एंड देन शादी भी करा दी। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट, मतलब जो मैन की फैमिली होगी वो पहले गिफ्ट देंगे वुमेन की फैमिली को, ठीक है, बट और उसके बाद वुमेन की जो फैमिली होगी वो रिटर्न कर देगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो था वो उल्टा होगा, ये वुमेन के फैमिली ने गिफ्ट दिया मैन के फैमिली को। मतलब दिस इज़ समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड कि ये भी चीज़ होती है कि अभी वुमेन की जो फैमिली है वो दे देती है सारी चीज़ें। इनडायरेक्ट में बसेरी, सदर्न ईरान में एक कम्युनिटी है बसेरी, उनमें इनडायरेक्ट मैरिज होती है। मतलब मैन की जो फैमिली होगी, ग्रूम की फैमिली, वो ब्राइड की फैमिली को दे देगी, उसके बाद ब्राइड की फैमिली वापस कर देती है। ब्राइड सर्विस ये 19% सोसाइटीज़ में होता है। इसको समझिए कि कॉम्पनसेशन जो होता है एक फीमेल का, जब वो ग्रूम के यहाँ चली जाती है तो जो फैमिली में उसका लॉस हो जाता है ना, वो भरने के लिए आदमी वहाँ काम करेगा। लाइक 3 to 5 ईयर होता है, ठीक है, इतना टाइम जो है बच्चा, या फिर कहीं होता है कि 3 बच्चे तक आप जो है सर्विस देंगे या 2 बच्चे तक आप सर्विस देंगे। सो दिस इज़ वन इट। देन ये होता है कि इसके बाद जो बच्चे पे राइट है वो सिक्योर हो जाते हैं। ये भी मंथ से लेके ईयर्स कितना भी लंबा चल सकता है। एग्जाम्पल में आप नागा, भील और गोंड, इसका लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ वुमेन। ये इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ में होता है, ये ऐसे नहीं होता है। सिस्टर एक्सचेंज मैरिज, ठीक है, एक A and B में अगर मान लो ये दोनों भाई है, ठीक है, दीज आर ब्रदर्स, तो इनकी जो सिस्टर होगी B' और इसकी A', तो ये इनकी शादी और इनकी शादी, ठीक है, सिस्टर एक्सचेंज। एग्जाम्पल है टीव वेस्टर्न अफ्रीका में, यानोमामू वेनेजुएला में, कोया, सावरा, भाईगा, गोंड, मुरिया इंडिया में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। गिफ्ट एक्सचेंज होता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट का। ये अंडमान आइलैंडर में होता है, इंडिया में अंडमान आइलैंड पे ये कम्युनिटी रहती है, अंडमान आइलैंडर्स। तो इसमें इक्वल अमाउंट का जो ब्राइड और ग्रूम है वो एक दूसरे की फैमिलीज़ को गिफ्ट एक्सचेंज करता है। एज फार एज दिस यूनिट इज़ कंसर्न, every topic we have covered and there is, I don't think there is any बहुत सारा टॉपिक अगर कुछ बचा है इसमें, तो सारी मेजॉरिटीली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर हो चुकी है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है जो मिसिंग हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो। और अगर कोई टॉपिक नया आ जाता है, यस लास्ट, थैंक गॉड याद आ गया, लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है ना अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन इट। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह आई विल नॉट राइट, आप
इसी डिस्कशन से जो भी कंक्लूजन है आप निकाल लीजिए। लिव इन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल या मेल एंड मेल, फीमेल एंड फीमेल, मतलब कपल, ठीक है, बेसिकली कपल। अब उसमें होमोसेक्सुअल कपल भी हो सकता है, हेटेरोसेक्सुअल भी कपल हो सकता है। तो एक कपल होता है जो कोहैबिट करता है एक साथ विदाउट फॉर्मल मैरिज, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन, ठीक है, कोई विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी थिंग, आप साथ में रहते हो। तो दिस इज बेसिकली आउट ऑफ सॉर्ट ऑफ लव हो सकता है पहला रीज़न। सेकंड हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानना चाहते हो बेटर, तो लिव इन, आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, दैट ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द थिंग। इसमें कोहैबिटेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, इसमें सारी चीज़ें होती है जो मैरिज में होती है, ठीक है। देयर इज ओनली डिफरेंस फ्रॉम लिव इन एंड मैरिज इज दैट कि मैरिज इज अ समथिंग विच इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सोसाइटी में, फैमिली में ये होती है। बट लिव इन इज समथिंग विच इज़ एज ऑफ नाउ इंडिया में इट इज़ नॉट समथिंग की विच इज़ एनकरेज्ड, या इस चीज़ को ऐसे कोई ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप मैरिज इंस्टीट्यूशन में कहाँ आता है, तो इसको समझिए कि मैरिज इंस्टीट्यूशन के नेक्स्ट स्टेप में आएगा लिव इन रिलेशनशिप। जैसे आपने फॉरेन सोसाइटीज़ में बहुत बार देखा होगा कि हस्बैंड चेंजेस लाइक कार, ठीक है, गाड़ियों की तरह हस्बैंड बदल रहे हैं, या वाइफ चेंजेस लाइक कार्स, बीवी बदल रही है, कार भी बदल रही है। सो लिव इन इज समथिंग, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप अपनी साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेट के बारे में भी आप टाइम में रह सकते हो। उसके बाद आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इक्वली शेयर कर सकते हो। दिस इज़ वन थिंग। डिसएडवांटेज क्या है, तो सोशल रिस्पेक्ट, ठीक है, दिस इज़ वन। उसके बाद जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसका स्टेटस क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दैट चाइल्ड विल ऑल्सो नॉट गेट अ सोशल सॉर्ट ऑफ अ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ इसमें आती है। सो in the next video when we meet, we'll be trying to take another topic. I'm right now little bit preoccupied with some things, so once I'm free I'll be taking more sessions. So up till then, keep studying and keep going through the videos, and may God bless you.